So your Taylor's formula at the origin, it was just Taylor's formula for a function of two variables. We are writing for function of two variables at origin. I'm just recalling it. We have done it yesterday. So I'm just writing the formula. So it was fxy f00. We replace h with x, k with y. X fx plus y fy at the point 0, 0. At the point 0, 0 means fx at 0, 0 and fy at 0, 0. यहाँ एक्स वाई की जगह 0 नहीं रखना है हमें. कल प्रॉब्लम ने एक्स वाई की 0 रख दिया था तो उससे क्या हुआ, होल टर्म विल बिकम 0. वी विल पुट fx 0, 0 fy 0, 0 है ना. प्लस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1y factorial 2 x square fxx plus 2xy fxy plus y square fyy at the point 0, 0. Similarly, 1y factorial 3 cube term and so on. Added term will be 1 by factorial n x del x plus y del y whole power n. Power n लिखेंगे ये आ जाएगा. F at the point 0, 0 and the remainder term, last term which is called remainder term, which basically give you the error. This is your, this gives the approximation error, the last term. So it will be x del over del x plus y del over del y n plus 1 f at the point cx comma cy. It was the formula for finding. इस पे एक प्रॉब्लम कल हम कर रहे थे. फर्स्ट प्रॉब्लम थी फ्रॉम योर एक्सरसाइज, find the quadratic and cubic approximation. Find the quadratic and cubic approximation of fxy is equal to क्या फंक्शन है, x e to the power y है ना, at origin. So quadratic means how many terms I will be taking here. Quadratic means up to 2. x square na, up to power 2. So you will have to write, so formula will be what, so you have to find f00, 0. So f00 was 0. fx will be how much, e to the power y. fy will be x e to the power y. Then fxy, इसको फिर y के रेस्पेक्ट में किया, e to the power y. The same will be fyx and fxx is 0. fyy is x e to the power y. Okay, so at the point 0, 0. So your fxy, that is the formula I'm writing this. So fxy is x e to the power y. This can be written as a in series terms. So how much f00 is 0 plus x fx. अब यहाँ पे 0, 0 means fx at 0, 0 है ना. It means x fx 0, 0 plus y fy 0, 0. इस टर्म में 0 लेंगे and 1 by factorial 2 is 2 x square fxx 0, 0
plus 2xy fxy 0 0 plus y square fyy 0 0. Okay, up to this. Now start putting the value. So यहाँ रख देते हैं, अभी स्पेस है, तो it will be how much? After this I can write first time. अब fx 0 0 देखिए, यहाँ 0 0 लिखा, तो how much? fx 0 0 is how much? 1. e की पावर 0 1 है ना, तो this will be x plus y, second term ले रहा हूँ, fy 0 0, fy 0 0 because x is in the product, so 0 plus 1 by 2 x square fx 0 0 is 0 plus 2xy fxy 0 0, fxy 0 0 is how much? 1 plus y square fyy 0 0 1 देखो ध्यान से, 2 क्यों प्रोडक्ट में है, ये 0 हो जाएगा ना, तो हाउ मच यू गॉट? x प्लस ये सब 0 हो गया, तो यू हैव x प्लस एक्स वाई हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स वाई। हाँ, तो ये आपकी x e टू द पावर y की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली है ना, इसलिए सिंबल में अप्रोक्सीमेशन का लगा रहा हूँ, इक्वल टू दिस, तो दिस कैन बी रिटन एज अ टेलर सीरीज, दिस एज अ मैक्लॉरिन सीरीज, इन फैक्ट लाइक दिस। इसका क्यूबिक भी लिखना है, क्यूबिक में क्या होगा? यू विल हैव टू राइट वन मोर टर्म फॉर क्यूबिक, for the cubic approximation you will write one more term, तो इसी में एक टर्म और ऐड हो जाएगा बस, so f x y x e to the power y, तो फर्स्ट टू टर्म्स तो सेम यही रहेंगे है ना, बस थर्ड टर्म ऐड हो जाएगा, फर्स्ट टू टर्म का तो सॉल्व होकर यही आ जाएगा, x प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस एक्स वाई, थर्ड टर्म क्या ऐड हो जाएगा? 1 बाई फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एफ एक्स एक्स एक्स, तो 0 ही है वो तो, यस सर, प्लस 3x स्क्वायर वाई एफ एक्स एक्स वाई, तो एफ एक्स एक्स 0 था, एफ 1 एक्स हो वाई, जाएगा सर, एफ एक्स एक्स तो 0 था ना, यस सर, तो एक्स एक्स वाई कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस 3x वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई, तो वाई वाई ये है, इसको जब आप एक बार एक्स, 1 हो जाएगा, हाँ तो ये आ जाएगा सेम एक्स ई की पावर वाई, जाओ 1, हाँ ये एक्स का तो 1 हो गया, अब ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यस सर, प्लस वाई क्यूब एफ वाई वाई वाई, तो वाई 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 ये है, इसे फिर करा, तो वाई 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 इज हाउ मच? सेम एक्स ई की पावर वाई, 0 हो जाएगा सर, 0 रखा तो 0, क्योंकि एक्स टर्म प्रोडक्ट में है, तो दैट मीन्स दिस इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1/6 एंड दिस, ये सब तो 0 है, सब 0 0 0, तो 1/6 मीन्स 1/2 एक्स वाई स्क्वायर, 1/2 हो जाएगा सर, एक्स वाई स्क्वायर, इसका आपका आ गया पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, in this way you can find it। सर ये तो एन तक नहीं ना बोलेगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा एन तक नहीं निकालने एन में। तक नहीं पूछ सकते, क्यूबिक की रखें मैक्सिमम बस, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम आप कीजिएगा अपने आप, होम असाइनमेंट, here fxy is y sin x, you have to find the cubic and quadratic approximation। 12th प्रॉब्लम में एरर भी पूछिए, इसमें अगर एरर निकालना हो, यूज टेलर्स फार्मूला, use Taylor's formula to find a quadratic approximation of e to the power x sin y at the origin 0 0, estimate the error,
estimate the error in the approximation if अपर बाउंड दिए हुए हैं एफ बॉड एक्स और मॉड वाई के एंड मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 0 ना, ये एरर वाला पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट थिंग तो इजी क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन यू कैन फाइंड, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन आपका एफ एक्स वाई ई टू द पावर एक्स साइन वाई है ना। So you can find fx. Fx is how much? Ex sin y. जब 0 0 रखेंगे साइन का टर्म पहले 0 0 लेंगे, सॉरी f 0 0, तो f 0 0 इज बिकॉज साइन y है तो फर्स्ट टर्म 0 प्लस x fx करेंगे 0 0, fx इज हाउ मच ex sin y, तो ऐसे चीज जैसे sin y रहेगा 0, तो दिस इज 0, x into 0 plus y into fy is how much ex cos y, अब 0 0 लिखा तो 1 है ना, प्लस 1/2 एफ एक्स एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, तो 0 आ जाएगा। हाँ, क्योंकि एफ एक्स है आपका ई की पावर एक्स साइन वाई, एक्स एक्स के साइड टर्म हमेशा 0 रहेंगे, एफ एक्स भी यही सेम रहेगा, और एक sin है, हाँ, sin प्लस y। 2xy विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एफ एक्स वाई इज हाउ मच ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, अब 0 0 रखा तो ये 1 ये 1, तो इट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई हाउ मच, देखिए एफ वाई इज ई की पावर एक्स कॉस वाई एंड एफ वाई इज माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई का मतलब 0, इट विल बी ओनली वाई आ रहा है तो वाई प्लस 1/2 2xy, तो वाई प्लस एक्स वाई है ना। अब एरर के लिए मैंने बताया था जो रिमाइंडर टर्म है दैट रिमाइंडर टर्म इज द एरर टर्म, तो अगर क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन है तो जो थर्ड टर्म होगा आपका क्यूबिक वाला दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी रिमाइंडर टर्म है ना, जो नेक्स्ट टर्म होता है रिमाइंडर टर्म कहलाता है। तो अगर क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन तक है तो थर्ड टर्म विल बी द रिमाइंडर टर्म, सो द थर्ड टर्म विल बी द रिमाइंडर टर्म, और वही आपका दैट, वो क्या होगा आपका रिमाइंडर टर्म मैंने क्या बताया था, दैट इज बेसिकली व्हाट, that gives the approximation error, that gives the approximate error. So you have to find error, so third term means, third term you know it is what 1/6 factorial 3 होता है ना, x cube f xx plus 3x square y f x x y plus 3x y square f x y y plus y cube f y y y ना, ये निकालते हैं। तो थर्ड टर्म में इफ आई वांट टू फाइंड एरर तो मॉड हमें गिवन है कि इसकी जो मॉड्स है मॉड x विल बी लेस देन इक्वल टू 0.1, मॉड y विल बी लेस देन इक्वल टू 0. ये आपका एरर टर्म है, तो एरर जो होगा अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। तो हमें जब बॉन्ड निकालना है तो मॉड x की वैल्यू जब ये दे रखी है तो आई विल फाइंड द बॉन्ड्स, हाउ मच द बॉन्ड्स, तो व्हाट इज एफ एक्स एक्स, देखो एफ एक्स एक्स आप निकालेंगे तो एफ एक्स 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 विल बी कमिंग ई टू द पावर एक्स साइन वाई ना, क्योंकि एफ एक्स वाई है e to the power x sin y, तो इसे कितने भी टाइम करेंगे सेम रहेगा। एफ एक्स एक्स वाई विल बी हाउ मच, एफ एक्स एक्स किया ई एक्स और साइन वाई का कॉस वाई, तो हाउ मच e to the power x cos y, एफ एक्स वाई वाई मीन्स इससे पहले x के रेस्पेक्ट में किया e की पावर x sin y, y के रेस्पेक्ट में किया cos y, फिर किया तो माइनस साइन y, तो क्या जाएगा माइनस ई एक्स साइन y, और लास्ट एफ वाई वाई वाई, तीन देखो एक बार करा cos y फिर किया sin y फिर किया cos y है ना, विद माइनस साइन। माइनस माइनस e के पावर x cos y। तो इसके अगर हम बॉन्ड्स निकालें
क्योंकि मॉड एक्स लेस देन 0.1 है, तो मैं इसका बॉन्ड निकालूंगा। देखो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0.1, तो दिस इम्प्लाइज दैट मॉड इसका अपर बॉन्ड क्या होगा, हम ये देखते हैं। तो देखिए इसका अपर बॉन्ड क्या हुआ, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, क्योंकि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0.1 है, ये हमें गिवन है अपर बाउंड्स। तो ये अगर मैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू रख दूंगा, इसलिए लेस देन इक्वल टू लगा रहा हूँ, तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू e टू द पावर 0.1 एंड साइन 0.1। ठीक है, ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, e की पावर 0.1 साइन 0.1, ये 0.1 रेडियन है, डिग्री नहीं है ना, इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ जाएगी 0.11। हमने अपर बाउंड निकाला। सिमिलरली e की पावर x cos y, देखिए इधर ट्रिपल जो मैं यहाँ रखूंगा, यहाँ दो ही टर्म आ रहा है, या तो e और एक्स वाई या साइन वाई आ रहा है, या e की पावर x cos y। इसका अपर बाउंड क्या होगा, e टू पावर 0.1 cos 0.1, इट विल बी कमिंग अप्रोक्सीमेटली 1.11। ठीक, so now I can find the upper bound for the error. So error will be what? Error will be e to the, अगर मैं error suppose e x y से डिनोट कर दूं, है ना, ये e x y से, so it will be less than equal to 1/6, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू क्यों, बिकॉज आई एम पुटिंग ऑल अपर बाउंड्स, मुझे वैल्यू नहीं गिवन थी, बाउंड्स गिवन थे, जब बाउंड्स रखेंगे तो ये चीज क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पर अगर हम बाउंड रखते हैं तो क्या हुआ, एक्स क्यूब का मतलब 0.1 होल क्यूब, क्या रख रहा हूँ मैं, ये वैल्यू, एंड एफ एक्स 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 कितना आया था, ई एक्स साइन वाई, ई एक्स साइन वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0.11, तो इट विल बी हाउ मच, नहीं एफ एक्स 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 की वैल्यू क्या निकली थी, ई एक्स साइन वाई, हाँ, इट वाज 0.11, so 0.11 0.11 है ना, एफ एक्स एक्स की वैल्यू प्लस 3x² वाई। अब x² वाई कितना है, मॉड एक्स और मॉड वाई सेम है, तो इट विल बिकम 0.1 होल क्यूब, एंड एफ एक्स एक्स वाई ई पावर एक्स कॉस वाई, इसका अपर बाउंड है 1.11, तो यू कैन राइट हाउ मच 1.11 प्लस 11 3x² एक्स वाई स्क्वायर, तो फिर ये दोनों सेम है, तो इट विल बिकम 0.1 होल क्यूब, एंड एफ एक्स वाई वाई हाउ मच, ई की पावर एक्स साइन वाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0.11, तो इट विल बी 0.11, एंड लास्ट टर्म वाई क्यूब, तो 0.1 होल क्यूब, ये लास्ट टर्म ऑफ एफ वाई 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 ई की पावर एक्स कॉस वाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1.11। ओके, ये हमने इन सबके मैक्सिमम वैल्यू रख दी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.000 कुछ 24, पता नहीं कितना है, लिखा था समथिंग 24 कुछ आएगा, चेक करिए। ठीक है, तो ये एरर का पार्ट आपका वैसे आता नहीं, लेकिन मैंने था तो बता दिया ताकि यू शुड नो कि हाउ टू फाइंड द एरर। तो योर एरर विल बी अप्रोक्सीमेटली इतनी, है ना, स्मॉल क्वांटिटी है, इससे ज्यादा एरर नहीं आएगी अगर आप मॉड एक्स और मॉड वाई स्मॉल नंबर लेंगे, तो जितना बड़ा करोगे मॉड एक्स मॉड वाई, एरर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इन दिस यू कैन फाइंड द एरर, तो जो लास्ट टर्म होगा आपका रिमाइंडर टर्म, वो एरर देगा। तो अगर क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन है तो क्यूबिक टर्म विल बी द एरर, अगर क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन है तो फोर्थ डिग्री विल बी द एरर। इज इट क्लियर? yes sir Yes, sir. Last topic of the unit 2 and of chapter 14 is 14.10 partial derivatives with constant variable with constant variable। आपको जो मंडे क्विज का सिलेबस है वो पूरा यूनिट 2 है इस चैप्टर तक।
तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है, लेकिन साथ में क्या है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल। सर ओनली यूनिट 2 का यूनिट 1 यूनिट 2 यार, ओनली यूनिट 1 आएगा क्या आपका? ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन है ये, कॉमन सेंस भी यूज करिए। यूनिट 1 यूनिट 2 है आपका क्विज 1 में। इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 2। सो पार्शियल डेरिवेटिव विद कांस्टेंट वेरिएबल। अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन साथ में क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल भी दे रखा है। कांस्टेंट वेरिएबल मींस व्हाट? टू इक्वेशंस आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव। जस्ट एग्जांपल, find del w over del x if w is equal to x square plus y square plus z square and z is equal to x square plus y square। देखिए अब यहाँ पर w del w over del x निकालना है आपको, w फंक्शन x y z का, लेकिन z is again given by some relation। So here what happening, कि w is a function of x y z and z is again function of x y। इसे ऐसे कह सकते हैं आप, w is a function of x y z, z is again function of x y, like this। So here now you have to find two equations given and four unknowns, है ना। So what happened, तो आपको पास कितने निकल सकते हैं आप, टू इक्वेशंस है, फोर अननोन्स है, तो यू कैन सॉल्व इट फॉर टू ऑफ द अननोन्स, है ना। ये टू इक्वेशन से कितनी वैल्यू निकलेंगी, टू ही तो निकलेंगी। तो इट मीन्स व्हाट, कि देयर विल बी टू डिपेंडेंट हियर टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड टू इंडिपेंडेंट, यही तो हुआ। डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे, टू। हाउ मच डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डीवी लिख दे रहा हूं मैं, टू। एंड हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, 4। यार 4 कैसे, सब चारों इंडिपेंडेंट भी होंगे क्या? जब टू डिपेंडेंट हो गए तो जो रेस्ट कितने बचे, दो इंडिपेंडेंट, दो ही तो बचे, 2 सर 2। है ना, टू हो गए। तो टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, टू इंडिपेंडेंट। देखो तो वैसे भी देखो, जब आपको डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स दे रखा है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि डब्ल्यू हमेशा वी ऑलवेज डिफरेंशिएट द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, है ना, इट इज द फॉर्मूला। आपके पास जब y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है तो आप क्या निकालते हो, dy बाई डी एक्स। तो वी ऑलवेज डिफरेंशिएट डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। तो जो टू वेरिएबल्स है कौन कौन से होंगे, w तो डेफिनेटली है ना, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर, x। अब क्या पॉसिबिलिटी है, ये दो तो डिपेंडेंट होंगे, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या हो सकता है, हो सकता है y और z, है ना। बोलिए, अगर w अगर wx है तो y और z हो सकता है, और यहाँ पर x है, अगर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो बाकी चॉइस क्या बची x के पास, बताइए। Z और Y। वही z और y, है ना, y और z। अभी चॉइस डिपेंड करेगा, अगर मैं यहाँ पर, लेकिन x फिक्स है, x कभी डिपेंडेंट नहीं हो सकता और w का x कभी डिपेंडेंट नहीं हो सकता और w कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, है ना। तो हमें जैसे डेल w और डेल x निकालना है यहाँ पे, तो वी हैव टू टेक रेस्ट ऑफ द चॉइसेस, कि हम w के साथ अगर y लेंगे तो x के साथ z ले लेंगे। तो टू केसेस आर पॉसिबल, टू केसेस पॉसिबल। व्हाट केसेस आर पॉसिबल, कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए आपका WY और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा फिर, x के साथ। XZ। एंड इफ डिपेंडेंट वेरिएबल WZ, then independent variable will be what, XY। XY, XY। क्योंकि WX तो फिक्स है। ये पॉसिबिलिटीज है। तो अब हमें अगर प्रॉब्लम दे रखी है तो ये चीज गिवन होगी, या तो अगर नहीं गिवन होगी तो हमें चॉइस लेके चल रहा है। जैसे यहाँ पर हमें सिर्फ x के बारे में पता है, तो अगर मैं फर्स्ट केस कंसीडर करूँ, सपोज आई एम टेकिंग दिस केस, तो नाउ व्हेन w ओवर, अब मुझे इस केस के अकॉर्डिंग डेल w ओवर डेल x निकालना है, ध्यान रखो इस केस के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं ये वाला केस ले रहा हूँ, इफ वी टेक
फर्स्ट केस। तो अब आपके पास क्या है, अब मैं अगर डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स निकालू, देखो डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स। अब कीप इन माइंड इसमें क्या है, डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स में एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो व्हाट आई कैन राइट, बोलो। अब इसे डिफरेंशिएट करो बस, क्या हो जाएगा डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स, 2x 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 हाँ प्लस, अब देखो y अब यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आई कैन राइट 2y, 2y लेकिन del y by del कितना, x डेल y अपॉन डेल del एक्स, x है ना, क्योंकि डिपेंडेंट था। y किस पे डिपेंडेंट है, x पे। इसे ऐसे कह सकते हो कि w जो है वो भी, इस केस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि w इज डिपेंडिंग ऑन xz एंड y इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन xz। अब ठीक है, प्लस z, अब हमें z स्क्वायर करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। 2z z क्या है, इंडिपेंडेंट है यहाँ, तो क्या हो जाएगा 0, 2z है ना, अच्छा क्योंकि 0 z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दूसरे टर्म में करोगे तो क्या हो जाएगा 0। देखो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अगर x को z के टर्म में करूँ या z को x के रेस्पेक्ट में करूँ, ये क्या आएगा हमेशा 0, बिकॉज अदर विल ट्रीट एज ए कांस्टेंट। so this implies that how much you got, 2x plus 2y del y over del x। लेकिन del y over del x की वैल्यू भी हमें निकालनी है यहाँ पे, वो कहाँ से निकालेंगे, इससे निकलेगी del y over del x की वैल्यू। देखो इसे अभी 1 लिख दीजिए। अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे फिर से विद रिस्पेक्ट टू x किया, ऑन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो z को विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं क्या, क्या होगा बताओ, 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 equals to हाँ, और एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, और वाई स्क्वायर का plus 2y dy by del y by del x यस प्लस 2y del y by del x। so this implies that del y by del x is how much, minus 2x upon 2y, so minus x upon y। इसे वापस उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए 1 में, है ना, Yes. पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, so your del z over del x is equal to क्या था वैल्यू, सॉरी del w over del x, del w over del x, इसकी वैल्यू हमने भी निकाली थी 2x plus 2y, तो 2x plus 2y माइनस एक्स अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसिल, क्या आ गया 0 आ गई वैल्यू। ठीक, इत्तेफाक से 0 आ गई, कुछ वैल्यू और भी आ सकती थी। ओके, तो ये हम डिपेंड करेगा कि किसको इंडिपेंडेंट ले रहे हैं और किसको डिपेंडेंट, कीप इन माइंड। अब इसी चीज को मैं अगर सेकंड केस के अकॉर्डिंग करूं, सेकंड केस ले रहा हूं नाउ इफ वी टेक सेकंड केस, इफ वी टेक सेकंड केस, सेकंड केस में क्या था डिपेंडेंट भाई, डब्ल्यू जेड डिपेंडेंट थे, है ना, तो डब्ल्यू जेड डिपेंडेंट है और किसके फंक्शन थे, एक्स वाई के। तो डब्ल्यू वाज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जेड वाज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब अगर मुझे निकालना है अगेन सेम थिंग, आई वांट टू फाइंड डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स। डब्ल्यू में यहाँ दोबारा लिख दे रहा हूँ, डब्ल्यू था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बताओ भाई डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स, कीप इन माइंड अब एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो 2x हो जाएगा ये तो, है ना, 2x प्लस हाँ 2z plus 0 0 0 plus हाँ 2z over plus 2z और 2z del z over upon del x यस del x एग्जैक्टली। अब डेल जेड ओवर एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे सेकंड रिलेशन से। सेकंड रिलेशन में क्या था, डेल जेड ओवर डेल एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, हाउ मच बताओ, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा सर 2x हो जाएगा, क्योंकि x आपका इसे देखो, है ना, और प्लस प्लस वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा 0, 0 क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। तो डेट मीन्स डेल जेड ओवर डेल एक्स इज 2x, इसे उठा के यहाँ वापस रख दीजिए। सो दिस इम्प्लाइज डेट डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2z इंटू 2x। तो कितना आ गया 2x प्लस 4 4z
4x, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड दिस। तो यहाँ पे यू हैव टू सी विच डिपेंडेंट वेरिएबल, विच वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इज इट क्लियर? इस नोटेशन को आप कैसे Yes, लिख sir. सकते हैं? हाँ, तो ये जो नोटेशन होती है इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है। नोटेशन इसको यू कैन राइट इफ यू आर गिवन डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स और ब्रैकेट में बाहर ये वाई लगा हुआ है, तो जितने नीचे आ रहे हैं वो सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। डब्ल्यू तो हमेशा डिपेंडेंट है, ये ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल तो डब्ल्यू है, और जो नीचे आ रहा है ये दोनों क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब इसमें अगर कोई और दिया होता तो उसको भी हम यहाँ लिख देते, लेकिन नीचे वाला जो भी आएंगे सफिक्स में एक्स और वाई, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे जैसे मान लीजिए डेल एफ ओवर डेल वाई और यहाँ लिखा हुआ है एक्स कॉमा टी, सो इट मीन्स व्हाट कि डेल एफ ओवर डेल वाई आपको फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू, तो डेल एफ ओवर डेल वाई विद रेस्पेक्ट टू क्या क्या है? वाई, एक्स एंड टी, ये तीनों ही इंडिपेंडेंट। इसके अलावा जो भी इक्वेशन में दिख रहा होगा वो सब डिपेंडेंट होंगे, कीप इट माइंड। जैसे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, और फर्स्ट प्रॉब्लम है पेज 828 पे आपकी, हम सोल्व प्रॉब्लम। W इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू एक्स। ये वही उसी तरह वही प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया जो भी मैंने सॉल्व करी। फर्स्ट प्रॉब्लम उन्होंने यही दी है। यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स हैं। यू हैव टू फाइंड डेल W ओवर डेल वाई जेड, B is डेल W ओवर डेल Z, सफिक्स में यहाँ पर x है। C पार्ट इज डेल W ओवर डेल Z सफिक्स y, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, देखिए। तो A में हमें क्या फाइंड करना है? डेल W ओवर डेल y Z, तो इट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या क्या हुए? देखो y z तो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, दिख रहा है हमें जो सफिक्स में, और W डिपेंडेंट है, और कौन सा रह गया? व्हाट इज लेफ्ट है? X. एक्स। तो ये ए पार्ट में ये दोनों इंडिपेंडेंट होगा, ये दोनों डिपेंडेंट, कीप इन माइंड, है ना। जो नीचे आपके सफिक्स में होंगे स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो अब यू कैन फाइंड इजीली। अब हमें क्या फाइंड करना है? देखो, डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई फाइंड करना है यहाँ पे, ओके। तो डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई आई कैन फाइंड, ये डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड था क्या यहाँ पे? एक मिनट को, हाँ डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई था, ठीक है। तो डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई के लिए व्हाट आई विल डू? आई विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डिफरेंस, तो हाँ, तो डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई, बताइए एक्स क्या है? डिपेंडेंट है, तो व्हाट आई कैन राइट? 2x डेल एक्स ओवर डेल वाई del y प्लस वाई स्क्वायर। वाई क्या है? वाई आपका इंडिपेंडेंट independent है, और विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो इसको 2y लिख सकता हूँ मैं, 2y 2y plus डेल वाई 0. प्लस, अब जब आप z 0. हाँ z आपका क्या है? दोनों इंडिपेंडेंट है, 0 जीरो। डेल एक्स ओवर डेल वाई निकालेंगे इससे। अब डेल z ओवर डेल वाई फिर से किया सेकंड इक्वेशन को, तो डेल z ओवर डेल वाई देखिए क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड? 0, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, इज इक्वल टू 2x डेल एक्स ओवर डेल वाई प्लस, और इसका कितना हो गया? 2y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y किया है ऐसे। दिस इंप्लाइज दैट डेल एक्स ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। इसे उठा के वापस यहाँ रख दीजिए। सो डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई सफिक्स z इज इक्वल टू, हम यहाँ माइनस वाई अपॉन एक्स रखा है, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? हो जाएगा सर, है 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ गया। बी पार्ट करते हैं, चलो। बी है आपका डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड एक्स, डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड एक्स। सो यहाँ पर यू हैव डिपेंडेंट वेरिएबल, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख लें, एक्स जेड, डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या बचा? डब्ल्यू वाई, है ना। इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि डब्ल्यू इज एक्स जेड और वाई डिपेंडिंग एक्स जेड। इक्वेशन आपकी ये थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लास एंड होगी भाई, तो मंडे में आपका क्विज है, क्विज के लिए रेडी रहिएगा। ट्यूसडे में क्लास होगी नेक्स्ट एज योर शेड्यूल टाइम। तो आई वांट टू फाइंड डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड, सो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब देखो 2x, x क्या? एक्स जेड,
independent, so this will be independent 0. y square, y डिपेंड कर रहा है z पे, देखो इस एरो से, तो 2y del y over del z प्लस del z z स्क्वायर का तो 2z हो ही गया, है ना। 2z अब del इसको करा सेकंड इक्वेशन को z के रेस्पेक्ट में किया तो क्या हो गया इधर 1, है ना, क्योंकि z के रेस्पेक्ट में करना, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स जेड व्हाट इंडिपेंडेंट दोनों, तो 0 प्लस 0 y स्क्वायर का 2y del y over del z, so this implies that del y over del z is how much, 1 upon 2y, तो इसे उठा के वापस पुट कर दीजिए, so del w over del z suffix x, this will be how much, 2y into 1 upon 2y plus 2z, so 1 plus 2z, ठीक है। in this way you can do all the c part है del w over del z y, इसे कर लोगे भैया, डिपेंडेंट वेरिएबल Yes, क्या होगा, sir. w कॉमा x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल z Z, कॉमा Y. y,